Okay, so we are continuing with electricity and we are uh, at which topic right now? Resistivity we need to cover, right? यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था निक्रोम वायर तक कि आयन के जो एलिमेंट्स होते हैं why are they made of nichrome wire. Now there is one very important question that is included here in this paragraph. They would ask you this question often comes in exam बच्चे, that nichrome alloy is used for making heating elements of electric appliances. Why? So it is not because only mostly students they just write this and expect full marks. You won't get that because it of course has got high resistivity. That is why we are using it as a heating element. But one more important point here is that it does not undergo oxidation easily even at high temperatures. So like what happens whenever you heat a thing, it oxidizes, right or not? It combines with oxygen, reacts with oxygen. So nichrome has got a property of not oxidizing even at very high temperature. That is why also you're using nichrome here. Understood everyone or not? So if you want to get full marks in this question, you have to write both the points here. First is high resistivity and second is it does not undergo oxidation even at high temperatures. Understood everyone or not? Clear no? Okay. Now we need to start up with this question, that is sample problem number 1. Okay. So this question here states a copper wire of length 2 meter and area of cross section this meter square has a resistance of these many ohms. Calculate the resistivity of copper. I never read numbers like 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, 2 into 10 to the power minus 2 ohms. क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है. Ignore the numbers first and just read the question. Question का understanding proper हो जाए, then start acting on the numbers. Okay. So a copper wire has this length. So L given to you is 2 meters. Area of cross section is, this is area itself given to you. एक्सक्यूज मी And resistance is, yes Avyesh beta. मैम आज मैथ्स था ना ये अवेश बच्चा हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम हमने ये एज्यूम किया था कि हम इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करेंगे एंड फिर वील स्टार्ट विद मैथ्स बच्चे. ओके ठीक है. Yes. तो आपने अभी मैथ्स का यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल आई कुड सी. सो मैं वहां से आज आपको चैप्टर दूंगी कवर अप करने को. योर ट्रिग्नोमेट्री एंड एपी यू नीड टू फिनिश फ्रॉम देयर. ओके By the time I am finishing electricity here, you'll do your maths, both the chapters AP and trigonometry from the channel, and then we'll start here maths again. यस Okay. यस Avyesh, switch on your camera, beta. यस Resistance given to you here is 2 into 10 to the power minus 2 ohms. Calculate the resistivity of copper. So resistivity you need to find out. Right, everyone? Naitik, camera on karo. I won't say that again and again to each and everyone. Advika, have you written in the group that you are traveling and you won't be able to switch on your camera? Yes, ma'am. Naitik? Okay, I'm removing you from the meeting. Right, everyone. और किसी को बंद करना है कैमरा? ये सब सेटल्ड है क्लास के लिए? ठीक है ना? ओके, गुड. सो रेजिस्टिविटी वी नीड टू फाइंड आउट. अच्छा, अभी पहले फॉर्मूला लिखती हूँ. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. यहाँ से रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस टाइम्स ए बाय एल. राइट और नॉट? है ना? एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा हम डिराइव कर लेंगे. सो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे. रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर इनटू ए बाय एल एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर है 2 into 10 to the power minus 2 into a is 1.7 into 10 to the power minus 6 upon what is L है 2. और रेजिस्टिविटी किस में मेजर होती है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द यूनिट? जल्दी से बताओ. Ohm. मीटर ओम
ओम या ओम मीटर? ओम मीटर। ओम मीटर, क्योंकि ये देखो ये ओम्स है, ये मीटर स्क्वायर और अपॉन ये मीटर, ओम मीटर, है ना बच्चे? सो दैट्स कैलकुलेटेड इन ओम मीटर्स। अब आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है, 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड। व्हाट इज लेफ्ट हियर? 1.7 into 10 to the power minus 6, ये प्लस 10 to the power minus 2, मतलब हम इसे भी minus 2 ही लिख देते हैं। So what is the answer? 1.7 into 10 to the power minus 8. Right everyone or not? But ohm meter. Clear everyone? जल्दी से कंप्लीट करो इसे, फिर आगे चलते हैं। 30 seconds given to write this. जल्दी से। Done everyone? Okay. So now we are starting up with next question. Question number 2. A copper wire has a diameter of 0.5 mm. तो एक कॉपर वायर है हमारे पास, उसका डायामीटर है 0.5, इसका मतलब रेडियस है 0.25 mm। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? Resistivity is this. So rho का value is given to you 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire to make the resistance 10 ohms? ये R का value given है, L का they want you to find out. But problem ये है, फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले फॉर्मूला लिखे, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, राइट और नॉट? यहाँ पर ए आपको पता ही नहीं है, आप यहाँ से एल कैसे कैलकुलेट करोगे? रेजिस्टेंस टाइम्स ए, ये ए मल्टीप्लाई हुआ और रो जाकर डिवाइड हुआ उधर से टू फाइंड आउट एल, है ना? डिराइव कर लेंगे ना ट्रांसपोजिशन से। लेकिन प्रॉब्लम ये है ए पता नहीं है, तो ए कैसे निकालें? एक चीज और ध्यान रखोगे बेटा, यूनिट्स हमेशा मीटर्स होने चाहिए, मिलीमीटर इज नॉट अलाउड। तो ये रेडियस गिवन है आपको, आपको यहाँ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा बच्चे। कैसे करेंगे? पाई आर स्क्वायर से। लेकिन पहले आर को मीटर में चेंज करेंगे। वी नो 1 मीटर इज कितने मिलीमीटर हो जाएगा वो? 1 मीटर इज 100 1000। सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, राइट? इसका मतलब डायगोनल रिलेशनशिप निकालने के लिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है ना बेटा? ये बात आती है ना सबको समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को भी? Okay, so now 1 meter is 1000 millimeter. This, when you are changing millimeter into meters, you will divide by 1000, right? इसका मतलब 0.25 you will divide by 1000 to change it into meters. तो मैं अब इसको ना points को और पीछे ले जाकर अपना problem increase नहीं करूंगी. I will write this as 0.25 into 10 to the power minus 3. This is my new radius. Right everyone or not? सिंपल है ना, 1000 से डिवाइड किया तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मेकिंग सेंस? अब ये मेरे पास 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियस है। पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर रही हूँ, पाई आर स्क्वायर को आई कैन अप्रोक्सीमेटली टेक एज 3.14। यस, इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर। मैं एक बार क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन देख लो। वैसे तो मुझे यहाँ रेड दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर होना तो नहीं चाहिए, इससे नीचे पाई का वैल्यू क्या लेना है। यहाँ तो मेंशन नहीं है।
What are they taking pi ka value? 22/7. The obvious value only they are taking. So we'll also go with the same one. 22/7. So 22/7 times 0.25 into 10 to the power minus 3. This is what? इसका square भी है अभी. Into 2. This is the area of cross section बेटा जी. Understood everyone or not? Complicated है ना? थोड़ा वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है. चलो पहले हम ए फाइंड करते हैं. अच्छा अभी इसको सॉल्व कर, मैं अभी इसको ना सॉल्व नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. मैं यहाँ एल फाइंड करने के लिए आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज 10 ohms इनटू all this 22/7 into 0.25 into 0.25 into 10 to the power minus 6 over what? Over rho ka value. What is rho ka value given to us here? Where is my question gone? मैम उसका वैल्यू 1.6 into 10 to the Hey, power I'm minus. on a different page, no? Yes, this is it. So what is the value of rho here? It is 1.6 into 10 to the power minus 8. Right everyone or not? है ना? मैं इसे यहाँ लिखने की जगह ना I can avoid writing it here and I can write it here as well. ठीक है बच्चे के नहीं? सो ये क्या हो गया देखो, मैं अभी आपको लेबल करके बताती हूँ. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बाय 7 के साथ, राइट? एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रो. हो गया बच्चे? फॉर्मूला में चीजें अप्लाई के नहीं हुआ? आर इंटू ए ओवर रो विल गेट यू एल. अब इसे सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करते हैं इन चीजों को? ये 10 टू द पावर minus 8 ब्रिंग इट टू द टॉप, वो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा. देन दिस पॉइंट्स रिमूव, दिस विल गिव यू a 10,000 here, and this 25 into 25 will give you 625. So this will be 625 into 22 into, now let us solve these tens. So it is 10 to the power 1 plus 10 to the power minus 6. So that is minus 5. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे 10 to the power minus 5 into this coming up, it will become 10 to the power positive 8, and this going up will become 10 to the power minus 4. Right everyone or not? है ना? अब I'll add all these powers, 10 to the power minus 5 plus 8 minus 4. So that is 10 to the power 8 minus 9 is minus 1. Got it everyone or not? अभी इसके अंदर एक 22/7 भी है और एक डिनोमिनेटर में 1.6 भी है. तो अब ये नंबर्स आपको खुद से सॉल्व करने सीखने हैं बेटा. मतलब नंबर्स ही हैं, कटिंग करो, सिंप्लीफिकेशन करो, जो भी सॉल्व कर सकते हो इसे सॉल्व करो, और साथ में इनटू 10 टू द पावर समथिंग चलता रहेगा. गॉट इट और नॉट? करो जल्दी से इसे सॉल्व. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम में बहुत ज्यादा स्क्रिबलिंग हो गई, कुछ समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझाओ, तो समझा भी सकती हो. बताओ समझ में आया कि नहीं? मैम कोई एक्सप्लेन करना. चलो फिर देखो अगम एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को बच्चे. थोड़ा सा ना एरिया क्रिएट कर लेती हूँ ताकि नीट हो जाए काम. नाउ इट विल लुक बेटर. चलो. So a copper wire has a diameter 0.5 mm. So I will write this as 0.25 mm.
है ना। और इसे mm को मैं चेंज कर रही हूँ इंटू मीटर्स इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, क्लियर है इतना आगम। अभी रेजिस्टिविटी का वैल्यू इज गिवन टू यू, रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, मैं वो लिख नहीं रही हूँ अभी, वो वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ। पहले आई एम फाइंडिंग ए। एरिया पाई आर स्क्वायर से आता है बेटा। पाई आर स्क्वायर इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। So 0.25 into 0.25 into 10⁻³ to the power 2 is, so वो -6 हो जाएगा, है ना। ठीक है अगम। अब आप चाहो तो इसे यहीं पे ही सॉल्व करो। ये दिस इज अपॉन 10,000 एंड ये 10⁻⁻6 है, दिस गोइंग अप, so it will be 22 times 25, 25 that is 625 over 7 into 10⁻⁻10। ठीक है बेटा, चाहो यहीं सॉल्व कर लो, चाहे नहीं करना है तो आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आगे कहीं कट हुआ नहीं था तो बेटर है यहीं पे इसे सॉल्व करके डेसिमल्स में निकाल लो। ये एरिया आ गया। अब आपसे एल फाइंड करने को कहा है। आपके पास फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। Yes, एल ma'am. निकालने के लिए यू विल डू आर इंटू ए अपॉन रो, राइट। तो अब बस वैल्यूज पुट करो। रेजिस्टेंस गिवन टू यू इज 10 ohms into A is this 22 into 625 over 7 into 10⁻⁻10 and into rho का value is 1.6 into 10⁻⁻8। Got it or not बच्चे? Yes, ma'am. ये आपका लेंथ पता चल जाएगा इन मीटर्स। Okay. हुआ किसी का कैलकुलेशन सॉल्व? अरे आदित्य, सॉल्व करना है बेटा, वेट नहीं करनी है किसी के सॉल्व करने की। मैम मेरा 2700.87 आया है। चेक करें। नो। एरिया का वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू फॉर एरिया? एक सेकंड मैम। जैसे मैंने किया था दैट मीन्स उसके हिसाब से 1964 इंटू 10⁻⁻10 होना चाहिए ना। दैट मीन्स सॉल्विंग ऑल दीज नंबर्स you should get 1964। हम्म 1964 ये है। दिस इज 1964 इंटू 10⁻⁻10। एरिया की वैल्यू चेक करो बेटा सब लोग।
You need to solve this. कर पा रहे हो बच्चे कैलकुलेशन? ऋषा कैमरा ऑन करो। अवेश हो रहा है बेटा? यस मैम कर। अवेश साइंस के लेक्चर्स देखे थे बच्चे? यस मैम। कितने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए? मैम पहला वाला हो गया, बस पहला वाला हुआ क्योंकि सबसे लंबा वही था। समझ में आया? यस मैम। आंसर आ गया। 1 to 2.7 meters? यस मैम 0.75 बट हाँ, that's okay. चले बच्चे आगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करें। Now the second part of the question here says how much does the resistance change if the diameter is doubled? That means we need not take this to be 1 millimeter and then again find the radius 0.5 millimeter and then again change it into meters, then again find what is happening to the resistance here. We will use the concept that we know without calculating. They are saying how much does the resistance change if the diameter is doubled. So what have we learned from the formula R is equals to rho L by A? We have learned that whenever you double the diameter, the radius also gets doubled, right? That means the radius is doubled means here pi r square may r gets doubled, right? When r is getting doubled, that means the its effectiveness would be 4 times here in the denominator. So it will be something like this 1 by 4 of rho L by A. And this is the original one. So the new resistance becomes 1/4 of the original one. Understood or not, bache? Clear or not? Is the concept good with everyone? Resistance ko if you have doubled, square of it is 4. So this is in denominator. So that means if this is getting fourth, है ना, 4 times. So resistance will get inverse of it. Clear everyone or not? जल्दी से नोटबुक में लिख दो इस आंसर को फटाफट से. What will happen to the resistance if the R, we are considering R, you have to write this first beta, that if diameter is doubled, resistance is also doubled. एक्सक्यूज मी मैम। The resistance of a wire is inversely proportional to the square of the diameter or radius. So this means this will be 1/4. बोलो तेजस बच्चे. मैम मुझे एक डाउट है। मैम जो मैम वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है मैम, तो फिर वो हीट अप नहीं हो जाना चाहिए जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है? तो हीट अप एज इन आपने वोल्ट मीटर, कोई ऐसा थोड़ी है आप सारे डिवाइसेस वोल्ट मीटर लगाकर पूरा दिन थोड़ी ऑपरेट करते हो बेटा. वोल्ट मीटर तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगाते हो ना वहां पे. तो इफ इवन इट इज प्रोड्यूसिंग अ लिटिल हीट इट इज ओके. वैसे तो वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, वो बहुत ज्यादा करंट क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है ना, वो बहुत ज्यादा करंट यूज अप ही नहीं करेगा. ओके मैम अगर उसको सीरीज में कनेक्ट करते तो फिर वो ज्यादा हीट अप होता? आप ऐसे समझो पैरेलल में आई इज डिफरेंट.
तो उधर हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से, जैसे मैंने, अच्छा मैं आपको समझाती हूँ, सब लोग एक बार मेरी बात सुनो। तेजस हैज आस्क्ड मी अ गुड क्वेश्चन। जब मैं ये बात करूं कि ये 2 डिवाइसेस है, राइट, और मैंने आपको बोला था फॉरेन करिकुलम में एक 9th ईयर में तो वो यही पढ़ाते हैं कि जो टोटल यहाँ पर जो आई है, वो ही आई यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ I1 है, वो I2 है। वो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। In case I tell you that resistance 2 is greater than resistance 1, अगर ये बड़ा है इससे, रेजिस्टेंस 1 से, अगर R2 is greater, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ I2 will be less। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस 2 की जगह यहाँ पर वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस वोल्टमीटर यूज कर दिया है आपने, तो उसको यूज करने की वजह से यहाँ जो I आएगा वो बहुत कम आएगा बेटा। अंडरस्टूड और नॉट? तो जब I बहुत कम आएगा तो हीट क्या होगा? अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? क्लियर नो? चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैम हाँ जी, मैम पैरेलल सर्किट में मैम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं डिवाइड होता? मैम अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैम, तो फिर पोटेंशियल। मैंने ये बात आपको समझाई ना बेटा कि जब आप पैरेलल में कनेक्टेड है, दो फ्रेंड्स आप पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप एक्चुअली दोनों के दोनों बैटरी एंड से कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली अगर दो गैजेट्स हैं इस तरीके से, ये एक गैजेट है और ये दूसरा गैजेट है, राइट, ये दोनों गैजेट्स इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है, तो बेटा इसके भी दोनों एंड्स यहाँ हाई, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, राइट, ये प्लस ये माइनस, तो इसको हाई और लो दोनों मिल रहे हैं, राइट। आ रही है बात समझ में? और इसे भी सेम हाई और सेम लो मिल रहा है ना बेटा? आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? इसी वजह से V सेम रहता है पैरेलल में, क्योंकि दोनों बैटरी के उसी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, मतलब उसी हाई और लो से कनेक्टेड है, इसीलिए उनको V सेम सप्लाई हो रहा है। लेकिन I डिपेंड्स ऑन the resistance of the apparatus, right? चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तेजस डाउट हो गया क्लियर या और करना है बच्चे? बोल। मैम हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 वी आर सॉल्विंग नाउ। A 6 ohms resistance, so resistance आपको 6 ohms given है, wire is doubled up by folding। When you are doubling a wire by folding, what are you doing? Can anyone help me understand? If this is the wire that I have, this is the length. Ipsa, focus on screen beta. Ma'am, you're increasing the surface area. When you are doubling the wire like this by folding, so what are you doing? You're reducing the length into half or not? And area of cross section is getting doubled or not? है ना? So that means this length is reduced to half and area is doubled, right? No? When a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding, calculate the new resistance of the wire. So इसका मतलब L को I can write as L by 2 and A को I can write as 2A now. ये L dash and A dash. कर पाएगा कोई बच्चा कैलकुलेशन इसकी? न्यू रेजिस्टेंस को क्या होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज रो L by A। रो रिमेन्स हमें कांस्टेंट, तो आप उसे छोड़ ही हम दो अभी, आप इसे प्रोपोर्शनल का साइन ही ले लो, L by A। आप लिखना चाहते हो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। will आप remain the same. कम अगेन बेटा। Will the resistance remain the same बेटा दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, नो व्हाट विल हैपन टू द so न्यू रेजिस्टेंस, दैट as इज द क्वेश्चन। रेजिस्टेंस को क्या होगा?
देखो, this is the original formula. You are finding R dash, which will be rho L dash by A dash. Right or not? Resistivity remains the same, no? That won't change. That is the property of the metal. That won't change. अभी देखो, कोई सोच पा रहा है तो बताओ मुझे, नहीं तो मैं करवाऊं इस क्वेश्चन को आगे। R डैश क्या कैसे निकलेगा? न्यू R क्या होगा? हाँ, रो तो सेम ही अच्छा, रहने वाला है। L डैश की जगह राइट L/2 एंड A की जगह राइट डबल ऑफ A। राइट और नॉट? अभी इसे बाय वन समझो। फर्स्ट ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो व्हाट इज R डैश? इट इज रो this 1 coming up, so 1L is only L, by this 2 into 2A is 4A. Right or not? I've always taught you to keep the formula intact. So if I bring this 1 by 4 outside, this is the formula again back to me. Right or not? So this row L by A I can replace with this R. So R dash is 1/4 of R. Right or not? Understood everyone or not? Is this concept clear to everyone or not? जल्दी से नोट करो इसे नोटबुक्स में फटाफट से। अच्छा, अभी तो ये we have found out the relationship बेटा, but they have given you the original resistance. तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R dash will be 1/4 of 6. From 1.5. So अभी 6 1.5. by 4 is 1.5. 1.5 ohms. So new resistance will be 1.5 ohms. Understood everyone or not? So have you understood the meaning of doubled up by folding? Then बच्चे करें next. Done with this everyone? Okay. Moving to the next question now. Oh, the concept is over. So we have come to a set now. कैसे करना चाहते हो? Set achieve करना है अभी for the remaining 15 minutes? ठीक है, okay. मैं recording end कर रही हूँ. Start completing this quickly.